शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज आप सब लोग बहुत दिनों के बाद विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। और क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए? हाँ, बहुत अच्छा। आज 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं? डॉक्टर सीवी रमन की प्रसिद्ध खोज रमन प्रभाव की याद में साइंस दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सम्मानीय प्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो डॉक्टर सीवी रमन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मानित करने की कृपा करें। बच्चों को वहां से सबको इधर कर दीजिए। आप लोग आ जाइए साइड। A monitor, white and dark blue, 12 E. आइए। डॉक्टर सीवी रमन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर हमारे प्राइमरी के शिक्षकगण मुकेश सर, प्रियंका मैडम, जो भी दिखाई दे रहे आइए। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाने का क्यों विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं कक्षा 11 की वंशिका को आमंत्रित कर रहा हूँ। वंशिका। A very bright and sunny morning to all of you, most respected principal sir, teachers and all my dear friends. I am extremely honored to have a great opportunity to speak before this honorable gathering about the National Science Day. National Science Day is celebrated on February 28 every year across India. But do you really know why do we celebrate this day? The National Science Day commemorates the innovation of the Raman effect by great Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkat Raman. Sir Raman on this same day had invented the Raman effect. In year 1928, for this contribution in the field of science, Sir Raman was awarded with Nobel Prize in Physics. In year 1930,
By celebrating this day as National Science Day, we show our dignity and respect to famous Indian physicist for his contribution in the field of science. Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Tamil Nadu. His father was lecturer in physics and maths. From 1907 to 1933, Dr. C.V. Raman worked in Indian Association of Cultivation of Science. On February 28, 1928, Raman led experiment with Indian physicist K.S. Krishnan on the scattering of light when he discovered what now is called the Raman effect. Raman effect explains the effect on scattering of light when passing through different materials. The main objective of National Science Day is to bring awareness to people about the importance of science in our daily life and to encourage people by popularizing science and technology. As students, it is our responsibility to honor the great man and his invention by contributing greatly to field of science through innovation. I wish all the science enthusiasts very best to enhance their scientific zeal. Thank you and have a marvelous Monday ahead. चंद्रशेखर वेंकट रमन हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए हैं। और प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज, सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज माना जाता है, वो नोबेल प्राइज है। और हमारे देश के जो प्रथम जो नोबेल प्राइज विजेता वो तो साहित्य में था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था और 1930 को सर वेंकट रमन को उनकी प्रसिद्ध खोज रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। और ये नोबेल प्राइज रमन इफेक्ट, अब रमन देखिए, रमन इफेक्ट बड़ी क्लास में जाएंगे आप तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पर आप ये सोचिए, कभी आपने सोचा कि ये आसमान नीला क्यों दिखाई दे रहा है? सोचने की बात है, आसमान नीला क्यों दिखाई दे रहा है? शाम के समय जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय आसमान में लालिमा क्यों छा जाती है? कभी आपने नदियों का पानी, जो गहरी नदियां हैं, गहरे तालाब हैं, इनका पानी नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? इन सब के पीछे वास्तव में कौन सा इफेक्ट, लाइट का जो रमन इफेक्ट, इसका प्रभाव है। तो रमन इफेक्ट की जो खोज की घोषणा डॉक्टर C.V. रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए ये राष्ट्रीय साइंस दिवस या नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। Principal sir, teachers and my dear friends, today I am Nayak Sharma of class 11A is going to give speech on importance of science in our daily life. Science refers to the knowledge one gained by systematically studying both the physical and natural world's behavior and structure by observing and carrying out experiments. While carrying out the research, the knowledge scientists acquire can be theories, facts, scientific laws. In most schools, students learn science in general or multiple branches of science. You may be wondering why science is important in our life. Science provides us with knowledge about so many things in our environment. It encourages innovation. It has led to the development of technology that makes life easier. We use science in almost all the activities we carry out daily. The toothpaste and soap we use is a product of science. Medicine make it possible to find ways to cure most diseases, like the invention of vaccine for COVID-19. Science helps in predicting and tracking the emerging health risks. Science affects the agriculture sector, construction, and also helps promotes communication by the invention includes the internet, radio, printing technology.
technologies, mobile phones, computers, smart televisions. In a nutshell, science helps to improve our lives. It gives us a better understanding of what is happening around us. The fact that a lot of research takes place before making conclusions shows that science is reliable. We should embrace science because it is a part of our daily activities. Thank you and have a nice day. देखिए आप दोनों के हाथ बीच में टच हो गए और अभी थोड़ी देर के बाद मैं इन दोनों बच्चों के हाथ 2.5 इंच कम कर दूंगा, 2.5 इंच इसका कर दूंगा कम, 2.5 इंच इसका कम कर दूंगा। दोनों के हाथ अभी मैं छोटे कर दूंगा। देखिए आप देखिए दोनों बच्चे अपनी जगह पे खड़े हैं, कहीं हिलेंगे नहीं और दोनों के देखिए उंगलियां टच कर रही हैं और अभी मैं इनके हाथ दोनों के हाथ छोटे कर दूंगा। देखिए देखो देखिए हाथ दोनों के हाथ मेरे छोटे कर दिए। अब देखिए दोनों के हाथ छोटे हो गए, सबने देखिए। चलिए जादू देखते हैं और जादू करने का कुछ मंत्र पड़ेगा और कहेगा कि हाँ मैंने देखेंगे जो हाथ छोटे कर दिए, मैंने भी छोटे कर दिए। वास्तव में मैंने छोटे नहीं किए, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आप बड़ी क्लास में जाएंगे, हमारी बॉडी में जितने मूवमेंट होते हैं, हमारे हम हिलते डुलते अपने अंगों को, ये मसल्स हमारी जो है हिंदी में पेशियां बोलते हैं मसल्स, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हमारी मसल्स सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो इन्होंने हाथ जब ऐसा खींचा तो मसल्स खींच गई, लंबी हो गई। आप भी तो करते घर में कोई चीज दूर पड़ी है तो आप ऐसे जोड़ लगाते और होकर क्या करते जोड़ लगा के उस चीज पर पहुंच जाता था, मसल्स खींचती और ऐसे किया मसल्स क्या होगी सिकुड़। ठीक, तो इसी तरह की और एक्टिविटी के लिए मैं प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले हिमांशु एंड हर्षवर्धन 50, आइए। अभी हमने मोमबत्ती को जलाया है, इसके अंदर जब तक ऑक्सीजन रहेगी जब तक इस पे आग चलेगी। अब इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो मोमबत्ती जो आग है वो बुझ गई। थैंक यू। इज नेसेसरी फॉर कंबशन। जब इन्होंने जो ग्लास था वो ढक दिया तो जो ऑक्सीजन थी वो बर्न हो गई और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन पूरी खत्म हो गई तो वो जो कैंडल थी वो बुझ गई। Studying class 5th. Today I will show experiment on air pressure. इसके बाद तुम क्या करना, तुम करते हो Thank you. Study class 4th A. And क्या दिखा रहे हो? इससे
सकती है, वो भी पानी के अंदर मैजिस्टिक को घेर के, मतलब डाल के। आगे करो और आगे किधर आ जाओ। आप ब्रीथ करते रहो पानी से। अभी पानी के बाउल में कुछ मैच स्टिक डाली हैं और आपको मालूम है कि अगर पानी में मैच स्टिक डलती है तो उसको फिर हम जलाएंगे तो वो नहीं जलेंगी। लेकिन अगर उस मैच स्टिक पर ऊपर कोलगेट लगा दिया जाता है और फिर पानी में डाल रहा है बच्चा, तो उसके बाद भी अगर ये पानी से मैच स्टिक निकालेगा और कपड़े से, क्लॉथ से वो कोलगेट जो लगाया उसको साफ करने के बाद इसको जलाएंगे तो आराम से ये मैच स्टिक जो है जल जाएगी। पानी से गीली नहीं होगी। यस, पानी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सारी मैच स्टिक जलाने पर सब भी जलेगी यहाँ पे। थैंक यू। कैंडल को बीच में रखा जाएगा। कैंडल को जला रहे हैं और फिर पानी इसमें डालेंगे। उसके बाद जो ग्लास है वो इसके ऊपर रखा जाएगा। अब धीरे धीरे मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है वो बुझ जाएगी और जो वाटर लेवल है ग्लास के अंदर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह के पानी को गलत केमिस्ट्री में से दिखाई नहीं देगा। ग्लास में जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो कैंडल जब जल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। तो वैक्यूम जो क्रिएट होगा, वाटर लेवल जो है अपने आप ऊपर आ जाएगा ग्लास के अंदर। बाउल का पानी ग्लास में ऊपर तक भर जाएगा। थैंक यू। ग्लास के अंदर वाटर डाला है, ये आप जो पीछे खड़ा कर देते हो बच्चों को साइड में कर दो इधर। दिव्यांशु ने अभी ग्लास के अंदर वाटर डाला है और वाटर के ऊपर वो कार्डबोर्ड रख के प्रेस कर रहा है ताकि जो एयर है वो बाहर निकल जाए। अब जब इसको वो टिल्ट करेगा ग्लास को तो पानी बाहर नहीं आएगा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर के प्रेशर के कारण। इधर दिखाओ इधर। Good morning all of you. My name is Vaishnavi and my name is Radhika. We are from class 5th. It's time to put inside the balloon. ये टेबल भी आप लोगों ने ऊंची रख रखी, छोटा स्टूल मंगवा दी। छोटा स्टूल देख लो। नहीं, छोटा नहीं, ये अलग से स्टूल ले। बोलिए बेटा। This balloon is now fixed at the top of bottle and poured inside the bottle. इसके ऊपर रख के इसके ऊपर इधर दिखाओ, सीधे सामने दिखाओ बेटा, तो सामने दिखाओ, हाथ में पकड़ लो उसको। बता दीजिए
बैलून को हम फूंक मार के फुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फूंक मारने की जरूरत नहीं है। वाटर में जैसे ही इनो डाली तो इनो से जो गैस फॉर्मेशन हुआ वो सीधा सीधा बाहर निकल रही है और बैलून में वो आ रही है। तो बैलून जो है धीरे धीरे इसमें फूलता चला जाएगा। अगर इनो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा फूल जाएगा। अंकुश ने इस बॉटल के अंदर 3 होल्स किए हैं अलग अलग लेवल पर, और वो ये शो करना चाहते हैं कि डेप्थ के साथ, पानी की गहराई के साथ जो है वो प्रेशर बढ़ता है। अभी ये इसको फिल करेगा। साइड में टेप लगाई है ताकि पानी बाहर ना आए। जब वो टेप हटाएगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे जो पानी है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे गिरेगा। देखिए ये डिफरेंट, जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा दूर जा रहा है और ऊपर वाला जो है वो पास में गिर रहा है। तो डेप्थ के साथ, गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है पानी का। ठीक है। नेक्स्ट जो है अंकुश के बाद सानिध्य। ये बच्चे जो हैं पानी में आग लगा रहे हैं। पानी में आग लगा के दिखाएंगे आपको। तो सनलाइट है, हो सकता है फायर दूर तक ना दिखाई दे, लेकिन वाकई में ये होती है फायर। पानी ऊपर तक भर लो, पानी ऊपर तक ऊपर तक। दिल्ली से जाके दिखा देना। सर लगी मैच स्टिक से दिखा दो। मैच स्टिक से ये देखिए फायर तो नहीं दिख रही क्योंकि उसका कलर ब्लू है, बट मैजिक स्टिक जैसे ऊपर ला रहे हैं अपने आप से जल जा रही है। Fill 2 glasses with water. Now put a lemon in a glass. It sinks. आगे करो इसको, गिलास से आगे करो, इसको भी करो आगे। अरे इसको जो रखा जिस पर रखा इसको भी आगे। It sinks. But why? Because the density of lemon is greater than the density of water. Now we will put some salt in another glass of water. बता दीजिए जी, सर वहाँ से बता दीजिए। देखिए अभी ये बता रहे हैं, अभी यहाँ पानी में इन्होंने नींबू डाली दूध में, और इसके बाद ये अभी सॉल्ट मिलाएंगे। थोड़ी बहुत देर के बाद आप देखेंगे ये नींबू ऊपर आ जाए। तो देख मिक्स करो। Mix it well. Now put the lemon in the glass. It flows. अब देखिए पहले लग गया, पानी का घनत्व जो है बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो तैरने लग गया। आपने सुना होगा, तुम में से डेड सी का नाम कितने लोगों ने सुना है? डेड सी का तो मालूम है, डेड सी में कोई डूबता ही नहीं है। ठीक है, पहले वाले को हटा दो। डेड सी का पानी इतना खारा, इतना ज्यादा नमक है उसमें कोई डूबता ही नहीं है। तो देखिए All my dear friends, today we all are present here to celebrate National Science Day. I am Janvi and we are students of class 5th. We are going to
present a skit in front of you on solar system. I hope you would like it. Thank you. एक तारा सूर्य मेरा नाम, सोलर सिस्टम का सेंटर मेरा स्थान, सुनहरा चमकता हूँ मैं रोज, आग के गोले जैसा मेरा जोश, सभी ग्रह मेरी परिक्रमा करे, ईश्वर जैसा मुझको रखे। We are planets, we are planets, we are planets. सूर्योदय के वक्त गिरता हूँ मैं, सूर्य के सबसे करीब रहता हूँ, पतली सतह और गड्ढे है, मेरे पास कोई चंद्रमा नहीं है, देवताओं का दूत से मैं प्रसिद्ध हूँ, मरकरी नाम से जाना जाता हूँ। सूर्य से दूसरा ग्रह मैं हूँ, चांद से दूसरा ग्रह मैं हूँ, पृथ्वी सबसे बड़ा मैं हूँ, पृथ्वी के करीब ही चमकता हूँ, शुक्र ग्रह नाम से जाना जाता हूँ, वीनस के नाम से जाना जाता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं आपकी प्यारी प्रीति हूँ और मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सूर्य से तीसरा ग्रह हूँ मैं, पृथ्वी नाम मेरा मजेदार हूँ, जमीन और पानी है मुझ पे, सोल्यूशन न करो परेशान मैं हूँ, झुकाओ के साथ मैं घूमती हूँ, पृथ्वी ग्रह हूँ जीवन देती हूँ, पृथ्वी ग्रह हूँ जीवन देती हूँ। उज्ज्वल हूँ, सूर्य से चौथा ग्रह मैं हूँ, पहचाना कौन मैं हूँ, तूफान और ज्वालामुखी भी है, चमकता हुआ मंगल ग्रह हूँ, चमकता हुआ मार्स मैं हूँ। सौरमंडल में हूँ, बृहस्पति नाम है सबसे बड़ा हूँ, जुपिटर नाम है सबसे बड़ा हूँ, आसमान में चांद से चमकता हूँ, अपनी लाल आंख के लिए प्रसिद्ध हूँ, जुपिटर के नाम से जाना जाता हूँ। सिक्स्थ प्लैनेट का नाम क्या है, आंखों से देखो तो मजा क्या है, 82 मून से घिरा हुआ हूँ, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हूँ, सुंदर रिंग्स है देखो मेरे, शनि ग्रह हूँ मैं, क्या शक है आपको। यूरेनस नाम का ग्रह मैं हूँ, सौरमंडल में 7वां मैं हूँ, शनि की तरह यहाँ चल रही है, क्या आपको पता है नीले हरे रंग का है ये, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये। देखते रहो, ये उल्टा घूम गया। क्या कर रही हो खड़ी होकर? ये उल्टा घूम गया, बाकी आधे से घूमे, ये उल्टा घूम गया। ऐसे देख रहो और दूर से घुमाओ इनको। उल्टा घूमने जा रही है, उल्टा से घूमो, ये उल्टा घूम रही है। पीछे हो जाओ। मिला था गणित से, नेपच्यून मिला था गणित से, बनाया जुआ ग्रह तब से, समुद्र के जैसा नीला है, दिखता नहीं क्योंकि दूरी है, समुद्र के जैसा नीला है, दिखता नहीं क्योंकि दूरी है।
सोलर सिस्टम का प्लैनेट हूँ। मेरा नाम प्लूटो है। पहले मैं 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अब मैं डार्क प्लैनेट कहलाता हूँ। हम सबको पता है कि कुछ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 9 प्लैनेट हुआ करते थे। उनमें से एक था प्लूटो। प्लूटो फिर कहाँ चला गया? क्या वह गायब हो गया? क्या वह किसी से टकरा गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सोलर सिस्टम ने प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट में से हटा दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट होने के साथ हमें ये भी पता लगा कि प्लूटो वैसा कंडीशन पूरी नहीं कर पाया जो प्लैनेट को प्लैनेट होने के लिए करना चाहिए होता है। थैंक यू। बच्चों, इन्होंने जो अभी आपके सामने शो किया, ये सोलर सिस्टम पे एक स्किट थी, और ये शो करना इन्होंने अपने 8 प्लैनेट तो शो किए ही, साथ में 9 जो पहले प्लूटो हुआ करता था प्लैनेट, 9th प्लैनेट, लेकिन अब वो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था जो प्लैनेट को प्लैनेट होने के लिए चाहिए होती है। इसलिए प्लूटो अभी भी वही है, लेकिन उसको प्लैनेट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया है। Garnet College and dear students, we are celebrating National Science Day, and the importance of this day is that we appreciate the efforts by our scientists, not only belonging to our country but the worldwide, because it is their efforts that whatever technology, whatever appliances, whatever field we are having, the facility we are enjoying, that is because of their efforts that they put the principles of science in reality. So the basic thing that what we can do, what we can learn, what you can do as students is to develop the scientific attitude and logical thinking. Whatever is happening around us, we should not believe until and unless it has some logical basis. And we should also appreciate that every day, whether it is the field of energy, transport, entertainment, medicine, as well as the defense, we are having the application of science. Now for science also, there are different branches like physics, chemistry, biology, and then in different streams of science also there are some branches. Like in physics, there are other branches like mechanics, light, electricity, magnetism, etc. Here I would like to show you 2 models that are related to us. Every day we know. The first is, this is the Newton's disk. And what is the purpose of that? The purpose was that there are 7 component colors most of us know. Everybody has seen rainbow, so 7 colors are there. But what is the relation of these colors together? When these colors are mixed, what happens? So these colors, as everybody can see, it is not even though very big, but you can see that they are different colors. So when I rotate, then you simply observe it, what happens.
as everybody of you have seen, that these colors have disappeared and only white color is seen. So that is the indication that a white light is composed of 7 basic component colors. Together in short form we say Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. And now I come to the second model. This model is Van de Graaff generator. When it is started, there is a mechanism that the charge is collected over this dome, metallic dome. This is the uncharged small spheres, metallic sphere. So when the charge gets stored in it, a limit comes that when some uncharged metallic part comes near to it, then the electric discharge takes place. Now I relate it to what you have learned in the junior classes also. Everybody knows, everybody experiences that there is the thunder and lightning. What is the reason for that? That the lower part of the sky, because of the friction, becomes charged. When large charge accumulates, and there is a large charge accumulation on there is a charge also on the surface of the earth. When the charge becomes very large on the clouds, lower part of the cloud, then the air between them becomes conducting, electric discharge takes place. Children, if there is no light here, even the students sitting at the back side would have seen the spark. So you may not see the spark, but I would make you realize the sound also. You can realize the sound, the crackling sound. So I started. So that crackling sound is when the charge is accumulated over it, and between them there is the electric discharge because of the large charge accumulated on the dome. Thank you. एक्टिविटी देखी प्राइमरी सेक्शन के, उसके बाद हमें सर ने आपको दिखाया ये एक्टिविटी करके दिखाई। तो वास्तव में हम साइंस डे मना रहे हैं। तो साइंस डे मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना। हम सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने आसपास देखिए क्या है, क्यों है, कैसे है, व्हाट, हाउ एंड व्हाट। अगर इन तीन प्रश्नों को ये तीन प्रश्न आपके मन में आते हैं तो तभी आप नई चीज सीख सकते हैं। ट्रेन में सब बैठते हैं, ट्रेन में आप बैठे, ट्रेन आगे को भाग रही है, आप बाहर देखिए पेड़ पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। रात को कभी देखना फुल मून देखो या जब भी मून दिखाई देती है। मेरा एक छोटा भतीजा था, मेरे साथ जा रहा था, तो कह रहा मेरे से ताऊ जी देखो देखो ये मून भी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं मून वहाँ वहाँ जा रही है। इस तरह की चीजें जो आप अगर देखते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि ऐसे तब सोचेंगे आप ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपके मन में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन में वैज्ञानिक सोच पैदा हो रही है। तो इसी से संबंधित कुछ और एक्टिविटी लेंगे सीनियर सेक्शन के छात्र। ये पहले तनीषा और सांजो। तनीषा, Respected sir, teachers and my all friends,
I'm Tanika, student of class 9K. Today I will show you the experiment of turmeric acid base indicator. मैंने एक पेपर लिया है जिसपे मैंने टर्मरिक पेस्ट लगाया है। मेरे पास एक लिक्विड है जिसको मैं पेपर पे लगाऊंगी। अब देखेंगे कि बेस है या एसिड है। यहाँ पे तनीजा ने एक पेपर लिया है। इस पेपर में येलो कलर दिख रहा है आपको। ये कलर टर्मरिक है, ठीक है, हल्दी जो हमारे घरों पे होती है। तो अभी देखते हैं इसमें एक लिक्विड इन्होंने एक बॉटल में लिया है। अब ये लिक्विड पता नहीं है इनको क्या है। अब ये लिक्विड अगर इस पेपर में टर्मरिक में लगाएंगे तो देखते हैं क्या चेंज आता है, कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज दिख रहा है, इसमें कलर चेंज हुआ है। तो ये कलर इसलिए चेंज हुआ है बिकॉज ये जो लिक्विड है ये बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमारे घरों में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको एसिड और बेसिस में कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, ठीक है। बेसिस एक केमिकल होते हैं जो हल्दी के साथ मिलकर उसका कलर कैसे चेंज कर देते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सानिया 90 आइए। और आगे कलर दिखती है। Good morning. My name is Sanya. I study in class 9K. Today I will show you rainbow in a glass. इसमें कितने कलर दिखाई दे रहे हैं आपको? एक से ज्यादा कलर दिख रहे हैं, बट ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, पूरा पानी है, सब कुछ वाटर ही है। अब वाटर में अलग अलग लेयर्स कैसे बनी वो आपको अभी यहाँ पे सानिया दिखाएगी। अभी यहाँ पे हमने 3 कंटेनर्स लिए, तीनों में वाटर है। शुगर, किसी ने नोटिस किया इसमें कितना स्पून शुगर डाला है? 1 स्पून शुगर इसमें डाला है। और इस वाले कंटेनर में एंड इसमें कुछ डाला है? इसमें कुछ नहीं डाला है, ठीक है। इसमें खाली वाटर है, इसमें 1 स्पून शुगर है एंड इसमें 2 स्पून शुगर है। इन तीनों में पानी था, बट डिफरेंस क्या है ना? इसमें नो शुगर, 1 स्पून शुगर एंड 2 स्पून शुगर, ठीक है।
ठीक है, इसमें वो वाटर मिक्स हो गया है, बट अगर उसको अच्छे से डाला जाएगा तो उसमें ऐसे अलग अलग, जैसे 3 कलर्स का वाटर था ना, तो अलग अलग उसमें लेयर्स बनेंगे। ठीक है, ये लेयर्स किस वजह से बन रही है? जो अभी आपने नींबू वाली एक्टिविटी देखी थी, एक में नींबू सिंक हो गया था, एक में फ्लोट कर रहा था, उसका रीजन क्या था? डेंसिटी की वजह से। तो यहाँ पे वाटर में हम जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डालते हैं, उसकी डेंसिटी उतनी क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है। क्योंकि डेंसिटी मतलब घनापन, घनत्व। तो जितना अमाउंट ऑफ शुगर उसमें ज्यादा रहेगा, उतनी चीज घनी रहेगी। और घनी चीज, जो हैवी चीज रहती है, हमेशा किधर की तरफ जाती है? उसे पानी में डाला जाएगा कोई हैवी डेंस चीज को, तो वो किधर जाएगी? नीचे जाएगी या ऊपर तैरेगी? नीचे जाएगी ना। तो जिसमें ज्यादा शुगर वाला जो वाटर होगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे सेटल हो जाएगा। थैंक यू। Principal sir, teachers and my dear friends. Today we students of class 11 PCM stream are going to present some activities on the occasion of National Science Day. To start. This is potassium iodide and this is lead acetate. First we will add potassium iodide in one beaker. Can anyone tell me what is the color of potassium iodide? It is colorless solution. Now we will add lead acetate in the other beaker. Can anyone tell me what is the color of lead acetate? Now we will mix both the solution in other beaker. बच्चों आप ध्यान से देख के आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर बताएंगे। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा कलर है? कोई हायर क्लासेस में से कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा रिएक्शन है? 10th और 12th दोनों में से कोई भी। कौन सा केमिकल रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम पहले पोटेशियम आयोडाइड और लेड एसिडेट को जब मिक्स करते हैं, तो जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो जिससे एक वाइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है और पोटेशियम एसिडेट बनता है। लेड आयोडाइड का कलर होता है ट्रांसपेरेंट और पोटेशियम। बच्चों ये दो सॉल्यूशन थे, लेड एसिटेट का सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो कलरलेस सॉल्यूशन थे। ठीक है, लेकिन जब हमने इनको मिक्स किया नेक्स्ट उसमें बीकर में, तो उनकी अलग रिएक्शन हुई और उसमें लेड आयोडाइड बन गया, जो येलो कलर का आपको दिखाई दिया है। उनकी रिएक्शन होकर लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, और वो इनसॉल्युबल है तब प्रेसिपिटेट फॉर्म। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी करेंगे। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा कलर है? सही से देख के बताइए। पर्पल। ये वायलेट कलर है। इसका कोई कलर मुझे बता सकता है? पहले हम सुक्रोज और NOH का मिक्स, अब हम ये वायलेट वाला सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में डालेंगे।
देखिए बच्चों, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, इसमें कोई कलर तो नहीं है। और जो बीकर में इन्होंने भैया ने लिया है उसका वॉयलेट कलर या पर्पल कलर आप कह सकते हो, ये कलर है। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे जब इस सॉल्यूशन को कलर्ड वाले को इसमें कलरलेस में हम ऐड कर रहे हैं तो क्या चेंजेस उसके कलर में आ रहे हैं आप देखेंगे और बताएंगे भी। थोड़ा सा कौन सा कलर है? अब कौन सा कलर है? येलो। दोबारा देख लीजिए बच्चों आप लोग। देखिए वॉयलेट कलर है इसमें पहले, अब कौन सा है? ग्रीन। और भैया स्टीयरिंग कर रहे हैं तो वो डार्क ग्रीन से देखिए अब चेंज हो रहा है लाइट ग्रीन में। अब देखिए और लाइट हो गया। और लाइट हो गया ना। अब कौन सा लगने लगा है? येलो कलर। कैसे हो रहा है ये चेंज? हमने तो एक ही कलर का सॉल्यूशन डाला था उसमें। और इधर 11 12 में बताएंगे कौन सी रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लिया था हमने वाटर में NaOH जो बेसिक है नेचर में, 7th क्लास के ऊपर तो सब जानते हैं, और इसमें हमने शुगर ऐड किया है। ठीक है, शुगर का पाउडर, तब ये सॉल्यूशन है। और KMnO4 इसमें डाल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, ये जो वायलेट कलर का। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये वाला जो सॉल्यूशन में शुगर है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इनकी रिएक्शन हो रही है तब ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था पोटेशियम परमैंगनेट, ये जब ग्रीन कलर आ रहा था उसका पोटेशियम मैंगनेट बन गया था, तब इसलिए ग्रीन कलर आ रहा था रिएक्शन में। और लास्ट में जो येलो कलर आ रहा था वो मैंगनीज डाइऑक्साइड वो फॉर्म हो रहा था। तो डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, वही कलर चेंजेस इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है, जादू नहीं है ये, कोई रिएक्शंस हो रही है। थैंक यू। We are going to show you an activity. Please watch it carefully and try to answer my questions. बच्चों ध्यान से देखिए। What is the color of this solution? Yes. आपको इसमें कोई चेंज दिख रहा है? अब कोई चेंज नजर आया? कोई चेंज? कोई इधर सीनियर सेक्शन में बताएंगे चेंजेस क्यों हो रहे हैं?
ये सारी चीज़ ये एसिड डाल के दिखा दो तो ना गायब हो जाएगा। अपना हाथ ऐसे करके दिखाई दे। ये देखिए फिर से क्या चेंज आ रहा है। ये चेंज इसीलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले हमने इस बीकर में हमने सबसे पहले एसिड लिया था जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। फिर उसमें हमने फिलोक्सिन ऐड किया था जो कि इंडिकेटर है, हमें ये बताता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। और क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें फिलोक्सिन कोई कलर नहीं देता, कलर ऐसे रहता है, कोई चेंज नहीं होता। फिर जब हमने इसमें बेस ऐड किया, हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था हमने जब इसमें ऐड किया तो उससे पिंक कलर आया, जिससे हमें ये इंडिकेट पता चलता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। उसी सॉल्यूशन में बच्चों फिर से इन्होंने अब फिनॉक्सिन दोबारा ऐड नहीं किया, फिर से उसमें एसिड ऐड करा तो वो जो कलर आ रहा था वो फिर से गायब हो गया, कलरलेस जो आपने बताया था। उसी में दोबारा से फिर NaOH का सॉल्यूशन यानी जो बेसिक था वो ऐड करेंगे तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है बार बार केवल उनकी इस वजह से कि वो एसिड है और बेस है, और फिनॉक्सिन जो इंडिकेटर है वो दोनों सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर अपने शो करते हैं। थैंक यू। ध्यान से सुने बात लगी। मुझे मालूम है गर्मी लग रही है आपको ना, लेकिन हम भी आपके साथ ही बैठे हैं यहाँ पर। ये रिएक्शन जो दिखाई गई आपको आज साइंस डे में, एक बार दूसरा केमिकल मिलाया तो पिंक कलर आने लगा, फिर परमानेंट पिंक कलर आ गया, फिर पहले वाला केमिकल मिलाया तो वो पिंक कलर गायब हो गया। ध्यान सुने मेरी बात। एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाने पर एक अच्छी रिएक्शन होती है, एक नुकसान देने वाली रिएक्शन होती है। ध्यान से सुनिए। वो आज आप लोग उस चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं, जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें पता नहीं कितनी चीजें मिला देता है वो। जब आप चाउमीन वगैरह इस तरह की चीजें बनवाते हैं वहां पर पता नहीं क्या क्या बनता है, नाम भी मुझे याद नहीं है। वो कितने एक बोतल उठाता है, कलर ऐसे से मिलाएगा, दूसरा ऐसे, पता नहीं कितना डाल देगा वो, कोई लिमिट ही नहीं है। देखा आपने कभी? कलर चेंज होता है, कभी कुछ कलर होता है। तो ये जान लीजिए वो जहर बन रहा है, ये जान लीजिए वो जहर बन रहा है हमारे शरीर में। जैसे यहाँ पर एक केमिकल मिलाने से दूसरा केमिकल मिलाने से एक फायदे की चीज बनती है, एक नुकसान वाली चीज बनती है, ऐसे हमारे शरीर में बनती है। तो वो जो खाने वाली चीजें हैं वो जहर मिलाया जा रहा है। हम आज के खाने में जो खाते हैं, शादियों में, पार्टियों में, हम अपनी थाली में 10 तरह के आइटम, अभी ये आइटम थाली में नहीं है, अभी यहाँ से आइटम खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, लगभग 20 आइटम है, 20 के 20 आइटम हम खा लेते हैं, ठंडा गर्म हर तरह। वो जहर बना रहे हैं हमारे शरीर में जाके। ध्यान से सुन लीजिए, क्या काम कर रहे हैं हमारे शरीर में? जहर का काम करे। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों को, हमारी किडनी को, हमारे लिवर को, हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचा रहे। इस बात को आज ध्यान रख लीजिए कि साइंस डे में ये जो बात बताई ये सच्चाई है। और इसीलिए बहुत हमारा जो शरीर है वो लड़ने की, शरीर की लड़ने की क्षमता जो है, कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। अपने कोरोना काल में देखा, जिन लोगों को कोई समस्या थी, शुगर जैसी समस्या थी, या कोई वो बीमार थे, किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे, वो दवाई खा रहे थे, शरीर उनका कमजोर हो गया था, वे लोग ही सबसे पहले कोरोना काल में उनको क्या कहेंगे, उनकी मृत्यु हुई है। तो ये शक्ति हमारे शरीर में कुदरत ने दी है। उस शक्ति को आप बना कर रखिए, उसको बढ़ाइए, कमजोर मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से आह्वान कर रहा हूँ कि आलतू फालतू की 1, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम आप खा लीजिए, लेकिन ये जहर मत खाइए। मैं कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कुछ 12वीं के बच्चे बैठे, सर मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, आज तक तो भला चंगा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो खा रहा हूँ, 5वीं क्लास बचपन से खा रहा हूँ ये चाउमीन और ये सब चीजें, लेकिन अंदर से वो शरीर कमजोर हो रहा है। सिंथेटिक दूध हम ले रहे हैं, मिल्क हम सिंथेटिक ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
मैं फिर यहाँ से आह्वान करूँगा, अभी जब मुझे वहाँ बुलाया जाएगा तो मैं बताऊँगा आपको कि क्या हो रहा है, साइंस हमें क्या दे रहा है और क्या नुकसान है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा नुकसान है, दाल रोटी, सिंपल दाल रोटी खाइए। आज भी हम गांव में देखते हैं कि 90 साल 95 साल के बुजुर्ग, अभी मैं वोट डलवाने गया था एक गाँव में, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, आपके सभी अध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो 95 ईयर्स के बंदे मैंने देखा है वो डंडी लेकर के आराम से चल रहे हैं, और हम लोग शायद वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए। तो अगर आपको लंबी आयु जीनी है, अपने शरीर को विकार रहित बनाना है, बीमारी से फ्री रखना है, तो दाल रोटी खाइए और बाकी चीज़ों को अवॉइड करिए। अपने शरीर की जो लड़ने की कैपेसिटी है उसको कमज़ोर आप कर रहे हैं। मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, खूब सर्दी जुकाम हो रही है, दवाई भी खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब जिस बच्चे को ज़्यादा दिन तक सर्दी जुकाम बुखार रहता है उसके अंदर की बॉडी की पावर कमज़ोर है, ये ध्यान दीजिए। और जिसको नहीं होता उसकी बॉडी की पावर मजबूत है। थोड़ा सा हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ, हल्का फीवरिश टेंडेंसी हुई, ठीक हो गया, अगले दिन स्कूल में आ गया। और कुछ बच्चे हफ्ते तक डॉक्टर की दवाई भी खा रहे हैं, होता है ना ऐसा? तो इसका मतलब कि हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। बाहर की जो दुश्मन है अंदर घुस गया, बैक्टीरिया वायरस, उसके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन शरीर कमजोर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाइए सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मेरे सभी साथीगण एवं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं। हर साल आज के दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं सर सीवी रमन जी के कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए जो उन्होंने साइंस के फील्ड में हमें दिया। आज इस मौके पर मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। खुली नजर से देखो बच्चों, खोलो मन के द्वार, खुली नजर से देखो बच्चों, खोलो मन के द्वार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। खुली नजर से देखो बच्चों, खोलो मन के द्वार, खुली नजर से देखो बच्चों, खोलो मन के द्वार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, क्यों ये पृथ्वी ऐसे देखो घूमती रहती है, रहस्य में अद्भुतकारी जो है लगता आज, हर भ्रम टूटे विभ्रम छूटे खुले जो उसका राज, अंतरिक्ष में भी हमने पहुंचकर किया है देखो कमाल, सोच बोझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाए, चारा खाकर गोबर बनता गोबर से फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद, ऐसे ही जीवन का परिया घूमे, ब्लैक होल हो या लहरों का हो खेल, अज्ञान से नाता तोड़कर सच की ओर बढ़े, इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। और आज हम सबका क्या कर्तव्य है? तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो विद्या जो पा, ये शपथ लो।
खुली नजर से देखो बच्चों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। धन्यवाद। लेंगे 2-3 मिनट में। मालूम है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, गर्मी है। मेरे विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, सभी को इस विज्ञान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग पूरे 2 साल हो गए, 2 साल के बाद जो हमारे बच्चे हैं वो आज एक साथ इस असेंबली ग्राउंड में बैठे हैं किसी कार्यक्रम में। आपको मालूम है बहुत कठिन समय था, अभी भी कुछ चल रहा है, हमें उससे पार पाना है। कुछ घोषणाएं मैं पहले करता हूँ अपने विज्ञान दिवस पर शुरू करने से पहले। अभी यहाँ से जैसे हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा, आपको आधे घंटे का रिसीस टाइम मिल जाएगा। प्राइमरी के बच्चों के अगर कोई अभिभावक लेने आते हैं तो उनको साथ भेजा जा सकता है जिस समय भी आए। उसके बाद साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है, वो मॉडल आपको देख लेंगे और उसके बाद का जो कार्यक्रम आपका जाता आपको बताएंगे। इसके अलावा कल की छुट्टी रहेगी, विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में कल की छुट्टी हम कर रहे हैं। क्यों आप काफी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, तो जो सेलिब्रेशन आपका उसके दिन बाद छुट्टी रखते हैं, तो विज्ञान दिवस के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में कल की छुट्टी। और महाशिवरात्रि है कल, महाशिवरात्रि। एक और अच्छी खबर है बच्चों के लिए, 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। अब आपको 8वीं क्लास तक के बच्चों को जब आपके अध्यापक कहेंगे तभी स्कूल आना है। आज के बाद समझ गए बात? 8वीं तक के बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन होनी है। और ठीक है, सेलिब्रेशन हो गया, अच्छी बात है। देखिए कितनी खुशी हो रही है कि एग्जाम घर से बैठ के देना है, लेकिन घर से बैठ के सारे कार्य नहीं होंगे। मैं केवल पहले एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसके बाद कभी भी आपको निर्देश दिए जा सकते हैं कि अगला एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, हर एग्जाम से पहले बताया जाएगा। ये सभी विषय अध्यापक और कक्षा अध्यापक ध्यान दें, ग्रुप में बच्चों को बता दें कि नेक्स्ट एग्जाम भी आपका ऑफलाइन होगा तो आपको विद्यालय में आना है, ऑनलाइन होगा तो आपको घर से देना है। और बाकी बच्चों की जो कक्षा तो आपको कैसे बुलाया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहेंगे। बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर आज कुछ एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत कम समय में आपके साथियों ने, आपके अध्यापकों ने तैयार की है। और इसका मकसद यही है कि विज्ञान क्या है इसको समझना। विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है विज्ञान के बिना। और विज्ञान ने आज करके दिखाया है। आज कोरोना काल का तो आप देख ही रहे हैं कि अभी करोड़ों लोग इस वायरस से मर गए हैं, लेकिन आगे के खतरे को कम कर दिया गया है वैक्सीनेशन से। एक बहुत बड़ी खोज, विज्ञान की एक सबसे बड़ी खोज जो अभी हुई है, ध्यान से सुने बच्चे, कोई बताएगा? विज्ञान ने एक चमत्कार करके दिखा दिया। बहुत सारे चमत्कार तो हो ही रहे हैं, एक बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में करके दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है तो डोनर मिलता है, या हार्ट खराब हो जाता है तो डोनर मिलता है। अगर किसी का हार्ट हमें डोनेट करना है तो इसका मतलब वो डोनेट करने वाला आदमी खत्म हो जाएगा, हार्ट नहीं है तो आदमी खत्म। अभी हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर के, पिग के हार्ट को, दिल को आदमी के अंदर लगा दिया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड करके पिग, सुअर,
उसके दिल को तैयार किया और आदमी के अंदर लगा दिया गया। ये विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। इसका तालियां बजाओ। क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर का एक कारनामा है कि साइंटिस्ट का उसका नाम मालूम है? नहीं। या नहीं। किस डॉक्टर ने, किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाई मालूम है? नहीं। ये इतना कुछ जो बनाया है उस इंजीनियर, उस डॉक्टर का नाम मालूम नहीं है, लेकिन सलमान खान का नाम मालूम है। हंस रहे ना? ये दुर्भाग्य है हमारा समाज का कि जिन लोगों ने चमत्कार वास्तव में करके दिखाए उनको हमें मतलब ही नहीं, उनको हम याद ही नहीं करते। और आज थोड़ी देर के लिए अगर उनको हम कुछ भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए तो उसमें हम परेशान हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर हम उन्हीं को बुला दें जिनका नाम मैंने अभी लिया, किसी बॉलीवुड के हीरो को बुला दें तो पूरा रुड़की शहर उनको देखने चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि फलाने साइंटिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, कोई मतलब ही नहीं है। उसे बस अड्डे पे एक व्यक्ति रिसीव करने भी नहीं जाएगा। ये दुर्भाग्य है। आप बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उनको सम्मान देना नहीं चाहते। क्यों दे रहे हम ऐसे लोगों के सम्मान? क्या कंट्रीब्यूशन लोगों का जो थोड़ा सा कुछ काम करते हैं अरबों रुपए कमाते हैं, और एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, इंजीनियर जो मेहनत करता है, मेहनत से इंटेलिजेंट पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ता है, दिन रात अपनी लैब में बैठा रहता है, काम करता है, उसको क्या दे रहे हैं हम लोग? तो कम से कम अगर हम कुछ नहीं दे पा रहे तो उसको एक नाम, उसकी एक तस्वीर हम अपने स्टडी रूम में, अपने क्लासरूम में जरूर लगाएं, उसको याद करें। अगर कोई तांत्रिक बाबा जी आ जाते हैं तो उसको भी लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको देखने चले जाएंगे। जादूगर आ जाता है तो वो थोड़ा सा हाथ की सफाई दिखाता है, उसमें भी साइंस ही है। तो आज हम सीवी रमन जी को याद करें तो हमारे से बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है कि आज उनका बर्थडे है या क्या है। ये जरूरी है बच्चों, इसलिए हमने आज साइंस डे बनाया। आज जो चमत्कार हो रहे हैं, विज्ञान के कुछ अभिशाप भी हैं, नुकसान भी। आज आप देख रहे हैं दो बड़े देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वहां पर बहुत सारा जान माल का नुकसान हो रहा, तो विज्ञान का एक नुकसान भी है। लेकिन आज विज्ञान ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया, इसको मत भूलिए आप। इतना आसान कर दिया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे आपकी उम्र में 20-25 साल का या 30 साल का फर्क होगा। 30 साल का मान लीजिए, कुछ बड़े बच्चे बैठे, तो 15-16 साल के डिफरेंस में इतना ज्यादा वो हो गया कि जो हमने देखे हालात और आज के हालात, कभी सोचा था कि घर में बैठ के मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास आप देख के करेंगे? कभी भी नहीं सोचा। आज आपको टीचर की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आप अगर घर में बैठे, छुट्टियां हैं, तो आप चिंता, जिन बच्चों को चिंता है पढ़ाई की, वो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर टीचर का समझावा समझ में नहीं आ रहा आपके स्कूल के टीचर का, तो आप कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कहीं कहीं वीडियो देख करके समझ ले रहे हैं। जो बच्चे हमारे मेहनती हैं, जो करते हैं, जो जिनको चिंता है अपने फ्यूचर की, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि साइंस का अंत नहीं, कितनी चीजें हम गिनवाएं आपको। आज यहाँ से आपको कहीं मैसेज आ, आपको लगता है कि भैया चलिए अंडमान निकोबार जाना है, तो आप 3-4 घंटे में, 4 घंटे में दिल्ली से अंडमान निकोबार चले जाएंगे। 3 घंटे में आप 3 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुंच जा रहे हैं आज अपनी गाड़ी से, 3 घंटे में। एक समय था कि पूरा दिन लगता था। तो ये क्या है? ये साइंस है, विज्ञान। कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, कहाँ से आप जाएंगे दिल्ली में, नॉन स्टॉप गाड़ी आपकी जाती है। ये किसने किया? विज्ञान ने। और विज्ञान को किसने बनाया? हमने। विज्ञान तो अपने आप बना हुआ है, साइंस बना हुआ है। हमने उसके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं, बहुत सारी हैं, वो निकाली है। तो ये आपने तो किया, ये किसने किया? आपने किया, बोलो हमने किया। आपके जो सीनियर रहे हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से निकले हैं, आपके बड़े भाई बहन, आपके अंकल, आपके आंटी जो अच्छी जगह पर इंजीनियर है, बुर्ज खलीफा 1 किलोमीटर लंबी इमारत बना दी, 1 किलोमीटर लंबी,
मालूम है किलोमीटर कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से अगर आप चलेंगे तो IIT का जो गेट है उसके आगे जो बिल्डिंग बन रही है वहां पर 1 किलोमीटर। आप चलते चलते यहाँ से थक जाते हैं। वहां तक जाने में आपको ई रिक्शा करनी होती है, अगर वहां को छोड़ा चले ई रिक्शा से चलेंगे। और वहां आप भी 1 किलोमीटर उस पर रह रहे हैं। 12,000 लोग लगे रहे डेली, दिन रात। उसके बारे में पढ़िए। तो बच्चों ये सब किसका कारनाम है? उस इंजीनियर का नाम याद रखिए, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, ऐसा बनने की कोशिश करिए आप। और बहुत जरूरी है, हमें एक एक्टर बनने से या हमें एक इस तरह से कुछ करने से समाज में कोई ज्यादा उत्थान नहीं होगा। समाज में अगर उत्थान होगा तो अच्छे डॉक्टर बनने से, अच्छे इंजीनियर बनने से, अच्छे अध्यापक बनने से, अच्छे नागरिक बनने से। जरूरी है, इतना आसान बना दे लाइफ। आज आपके मन में भी आता होगा जब आप मोबाइल देखते हैं कि यार मोबाइल लेके स्कूल में आना मना है। काश ऐसा मोबाइल होता, वो गायब हो जाता, हाथ में छूट जाता। काश ऐसा मोबाइल होता, वो हमारे कपड़ों में बटन की तरह कहीं छुपा हुआ तो दिखाई ना देता। और एक और सवाल आप सबके मन में आता, मेरे भी मन में आता है, कौन सा? कि काश विज्ञान ऐसा करते हम दिखाई ना दें। क्यों? है ना? कुछ फिल्में देखी आपने? उनको देखने में खूब मजा आता, गायब हो गया इंसान। और एक दिन ये भी आप करके दिखाएंगे, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इसको एंजॉय करिए बच्चों। धूप काफी दिनों के बाद निकली है, विटामिन डी अच्छी मिल रही है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको बहुत सारी बधाई। साइंस को कभी मत भूलिए, और न ये भूलने की कोई ऐसा विषय है। कम से कम हर बच्चे को कह रहा हूँ 10वीं तक तो साइंस आप पढ़िए ही। अगर बच्चे साइंस 12वीं में नहीं पढ़ रहे तो 12वीं में अगर आप दूसरे सब्जेक्ट ले तो साइंस को भी पढ़िए। आपको लगेगा कि वास्तव में क्या अभी जो कुछ दिखाएं, छोटे छोटे इन्होंने दिखाए हैं कुछ करके यहाँ पर, वास्तव में ये सब एक जादू है, चमत्कार है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हार्ट चेंज किया गया है, चूहों के ऊपर, बहुत सारे जानवरों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग के पार्ट्स बन रहे हैं। वो उसको प्रत्यारोपण कहते हैं, ट्रांसप्लांट कहते हैं, वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले परीक्षाओं की, त्योहारों की, इस महीने में आपकी होली भी आ रही है, महाशिवरात्रि है। एंजॉय करिए और अपने आप को बचा कर रखिए, मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करिए, और खाने पीने की चीजें वो अच्छी चीजें खाइए। धन्यवाद। अभी पानी में भिगो दिया, कोई बच्चा अगर लगा सकता है इसमें? अगर लगा सकते हो तो ट्राई करें, लेकिन हम इसमें आग लगा के दिखाएंगे। मैडम इसमें आग लगा के दिखाओ पहले, ऐसी लगती है क्या? नहीं जल रहा। अब एक केमिकल में हम भिगोते हैं और फिर देखते हैं, थोड़ा सा ही भिगोएंगे और अब देखते हैं कि इसमें आग लगती है क्या। लग गई? धूप में ठीक से नहीं दिखाई दे रही होगी, फिर से दिखाते हैं। देखो, देखो कपड़ा ज्यादा नहीं जला। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास, मैंने बताया कि विज्ञान में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उसको उसकी एक्टिविटी करके घर में